having handled over 40 companies during my CS internship tenure, I am here today to help you guys with your CS internships and every question that follows in your mind regarding CS internships. So without further ado, let's get into today's video. I had the privilege to work with this PCS firm where I had the opportunity to handle so many types of business organizations. I handled private companies, I handled public companies, I was handling 3 listed entities जिसमें से एक debt listed थी और 2 equity listed थी. Even one of the equity listed company NSE पे भी listed थी और BSE पे भी listed थी. So listed company के बारे में भी I know quite a lot. Other than that, I was looking after Section 8 companies, OPCs, and partnership firms and LLPs. Now, because I was associated with the firm, I had so much to learn because firm आपको company के comparison में काफ़ी ज़्यादा exposure देती है. But don't you worry, we are going to cover कि आपको एक PCS firm के साथ अपनी internship करनी चाहिए या फिर company के साथ. Don't worry about that. उसके भी कुछ factors होते हैं and we will discuss it. See, the first question that follows around your CS internship is कि आपको कौन सी organization choose करनी चाहिए and how do you find this exact perfect organization for you to complete your 21 months CS internship, right? So see, I found that क्योंकि मैं जब अपनी EDP में थी I used to connect with a lot of professionals जो वहाँ पे आते थे and we used to ask them. मैंने अपनी internship इंदौर से करी है, आप जानते होंगे अगर आप मुझे LinkedIn में फॉलो करते हो कि मैंने कहाँ से करी थी. So basically I used to keep interacting with those professionals और हम पूछते रहते थे कि यहाँ पे top firms कौन सी हैं, यहाँ पे companies कौन सी अच्छी हैं. That is how you connect with the professionals, with the friends and जितने भी लोग वहाँ पे आते हैं. So that you know कि यहाँ पे क्या मार्केट है, यहाँ पे कौन मार्केट लीडर है एंड एवरीथिंग. जिस फर्म में मैं काम करती थी दैट वाज अमंग्स द टॉप बेस्ट फर्म्स इन इंदौर. सो आई वांटेड टू डू माई इंटर्नशिप फ्रॉम अ प्लेस दैट वाज नोन, from a place that had work exposure. So आपकी expectations first of all बहुत clear रहनी चाहिए. Like my intent was never कि मुझे सिर्फ internship करनी है, मुझे सिर्फ मस्ती मजाक करना है. I just want to have a very enjoying period of my 21 months articleship. No, I was ready to work hard and the only thing that I wanted to chase was exposure. And जिस firm से मैं associated थी वहाँ पे I got a very good exposure, like very good exposure. So first things first, आपका intent clear होना चाहिए. Second, how will you find that? एक तो मैंने आपको तरीका बताया कि आपके EDP में आप लोगों से बात करो. Second is through LinkedIn. अगर आप LinkedIn पे नहीं हो, please make a profile there. Now these 3 places, that is आप EDP के टाइम पे थोड़ा सा have conversations, communicate, build connections. Second LinkedIn and third your placement portal. These 3 are sufficient जहाँ से आपको आपकी CS internship मिल सकती है without any having to do very hard things. Now आपको किस टाइप की ऑर्गेनाइजेशन चूज करनी चाहिए, मैं आपको बहुत ब्रीफ में फैक्टर्स बताना चाहूँगी. पहली वो ऑर्गेनाइजेशन, भले वो कंपनी हो या फिर वो कोई फर्म हो, जो ICSI की मिनिमम स्टाइपेंड नॉर्म्स को फॉलो करता हो. दैट स्पीक्स अ लॉट अबाउट the organization. You will know that what I mean in the long term. But आपको minimum 5,000 stipend तो देना ICSI बोलता ही है. Please see that आपको minimum 5,000 तो मिले ही. आपको कंपनी में ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट आप कहीं अगर PCS फर्म के पास जाओगे तो आपको ये प्रॉब्लम आ सकती है. I was being paid initially 5,000 because our firm was very compliant with whatever ICSI said. That speaks a lot about any firm, any organization. So first thing is that. Second, टाइमिंग्स जो आपकी होनी चाहिए वो बहुत ज़्यादा रिग्रेस नहीं होनी चाहिए. लाइक 10 to 7:30 इज़ सफिशेंट. लाइक बहुत हो गया. लाइक आपको 8 घंटे मिनिमम करना है अकॉर्डिंग टू योर इंस्टीट्यूट. इट्स ओके, कभी भी कभार 9 बज जाते हैं. आई हैव पर्सनली कम बैक होम एट 11 इवन, बट एनुअल फाइलिंग के टाइम्स पे और जब कुछ बड़े असाइनमेंट्स होते थे मेरे हाथ पे तब. बट टाइमिंग प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, स्पेशली अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो साइड बाय साइड. क्योंकि आई वॉज डूइंग दैट. तो मैं मतलब बाय गॉड्स ग्रेस में लास्ट के 1 month पढ़ के पास हो गई थी. बट मैं पूरे साल भर नहीं पढ़ पाई थी बिकॉज आई यूज टू लव टेकिंग असाइनमेंट्स एंड वो असाइनमेंट्स के कारण मुझे लेट तो 100% होता था. सो प्लीज़ सी, आप टाइमिंग वाला फैक्टर बैलेंस करके चलो, स्पेशली फॉर स्टूडेंट.
Another very important thing is that you should feel safe and comfortable, and you should go to a place where your voice is not considered as opinionated and it is considered as a part of discussion. Environment बहुत मैटर करता है, आपका एम्प्लॉयर का एटीट्यूड बहुत मैटर करता है. The employer has the power to literally change your life, to change your thinking. आप उनसे जब mentorship ले रहे हो, you change in every aspect. मतलब if today I'm given an assignment, मैं उसको उसी तरीके से करूँगी जो मुझे मेरे first employer ने सिखाया. No matter मैंने उसके बाद कितने employers अपने change कर लिए हों या whatever and whosoever I've worked with. Your first employer is very important. Choose that person wisely. So before you enter into any type of agreements, please make sure and please do your research so that you are comfortable, because 21 months is a very long time. आप फैमिली कनेक्शंस बिल्ड करके निकल रहे हो तो वो फैमिली बन जाते हैं, बिकॉज आप एकदम न्यू होते हो एंड दैट पर्सन इज़ द फर्स्ट पर्सन जो इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हु यू आर टुडे. लाइक फॉर मी, माई फर्स्ट मेंटोर जिनके मैंने अपनी इंटर्नशिप की है, दे आर द रीज़न who I am today, why my personality is like this, the confidence that I have. So please choose your first employer very carefully. Now coming to a very main part कि आपको एक PCS firm के अंडर अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट करनी चाहिए और शुड यू चूज़ अ कंपनी. नाउ दिस डिपेंड्स ऑन अ वेरी ब्रॉड फैक्टर. मतलब आई डो नॉट एक्सपेक्ट कि आपने अभी से एट द एज ड्यूरिंग योर 20s आपने अपनी लाइफ फिगर आउट करके रखी है कि आपको आगे जाके जॉब करनी है या प्रैक्टिस. बट आपको थोड़ा सा तो आइडिया होगा, अगर आपको इतना सा भी इंटरेस्ट है कि आपको आगे जाके प्रैक्टिस करनी है, प्लीज़ चूज़ अ PCS फॉर्म. सी टुडे आई हैव एक्सपीरियंस ऑफ हैंडलिंग ओवर 40 कंपनीज. मैंने आपको बताया मैंने किस टाइप की कंपनीज हैंडल करी है. नाउ आई हैव द अपॉर्चुनिटी ओपन कि मैं प्राइवेट कंपनी में भी CS अपॉइंट हो सकती हूँ, मैं लिस्टेड में भी हो सकती हूँ, मैं पब्लिक में भी हो सकती हूँ, और मैं अपनी प्रैक्टिस भी कर सकती हूँ, बिकॉज आई नो हाउ टू हैंडल ऑल ऑफ दीज टुगेदर. सो आई हैव इतना ज़्यादा ब्रॉड स्कोप ऑफ गोइंग एनीवेयर. बट अगर मैं कंपनी में कर रही होती तो आई थिंक माई एरियाज वुड हैव बीन रिस्ट्रिक्टेड. दैट इज़ माई अप्रोच एंड दैट वॉज माई थिंकिंग, एंड आई फील वेरी हैप्पी एंड कंटेंट विथ माई डिसीजन ऑफ गोइंग टू अ PCS फॉर्म टू डू माई इंटर्नशिप. नाउ ये चीज़ भी सच है, अगर आप एम करते हो कि आपको थ्रू आउट योर लाइफ टाइम आपको कंपनी में एज अ CS अपॉइंटेड रहना है, यू डू नॉट वांट टू डू योर प्रैक्टिस, डू नॉट गो टू अ PCS फॉर्म. बिकॉज अगर आपका ये विजन है एंड अगर आप 21 मंथ्स किसी अच्छी लिस्टेड कंपनी में टॉप 1000 कंपनीज जो होती है लिस्टेड कंपनीज, अगर आप उनमें इंटर्नशिप कर लेते हो, यू हैव वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इन कंपनीज जो शायद उस इंसान को नहीं मिले जिसने PCS फॉर्म से भले 100 कंपनियाँ हैंडल करी हों. दिस हैपन्स. आई हैव बीन लुकिंग फॉर जॉब्स एंड दैट इज़ वॉट आई हैव रियलाइज्ड कि अच्छी जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं वो प्रेफरेंस देती हैं कि आपने अपनी इंटर्नशिप किसी लिस्टेड कंपनी से करी हुई हो. So you have to be a little clear about your future. Another thing that people ask that should we switch, like अगर हमने PCS firm में start कर दिया है, later on हमें company में switch करना है, should we do that or should we not? Whether it will create a positive impact on a resume or a negative one. So listen, you should not switch until and unless you have a genuine problem. Like अगर आपको वहाँ का environment अच्छा नहीं लग रहा है, you should switch. अगर वहाँ पे आपको काम नहीं मिल रहा है, you should switch. But one thing that you should consider, देखो environment ना कभी कभार हम थोड़े से regress हो जाते हैं, because having stepped out of our houses for the first time, हमें नहीं पता होता कि exact environment क्या है. So कभी कभार environment को लेके हम थोड़ा सा गलत हो सकते हैं as trainees, but you know what, उस फैक्टर को हमेशा सेकेंडरी रखना. प्राइमरी फैक्टर शुड बी द एक्सपोजर दैट यू आर गेटिंग. अगर आपको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है वहाँ पे एंड यू कंटिन्यूसली गेटिंग न्यू वर्क, नॉट द रूटीन रिपीटेड कोर्सेज, बट अगर आपको नया कुछ काम हर वक्त मिल रहा है, प्लीज़ डोंट स्विच. द ओनली गोल फॉर दिस 21 month इंटर्नशिप इज़ एक्सपोजर. यू शुड लर्न एंड यू शुड लर्न एंड यू शुड ओनली लर्न. इसके अलावा जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट शुड बी नोन टू ईच एंड एवरी CS स्टूडेंट जो अपनी इंटर्नशिप स्टार्ट करने जा रहे हैं, इज़ दैट आपको आपकी जो ICSI की ट्रेनिंग गाइडलाइंस हैं वो थॉरली पता होनी चाहिए. दैट इज़ टू मेक यू अवेयर एंड कंप्लाइंट एज वेल. बिकॉज सी, जब तक आप अवेयर नहीं होंगे कि आपके क्या राइट्स हैं और आपकी क्या ड्यूटीज़ हैं, यू विल बी मेकिंग मिस्टेक्स. सो इट इज़ वेरी एसेंशियल कि आप वो ICSI ट्रेनिंग गाइडलाइंस पढ़ो. इफ़ यू वॉन्ट आई विल लिंक इट इन द डिस्क्रिप्शन बिलो. आप वहाँ से विजिट कर सकते हो. वरना ICSI की साइट पे न्यू ट्रेनिंग गाइडलाइंस हैं, अभी
ICSI ने न्यू ट्रेनिंग गाइडलाइंस इशू करी है, यू शुड रियली नो दैट बाय हार्ट. थोड़ी सी लंबी है, टेक 2-3 days, बट आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी वन, क्योंकि उसमें किस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट करना है, क्या आपको कितने टाइम की लीव्स मिलती हैं, एग्ज़ाम लीव्स कितनी होनी चाहिए, अगर आप कब कब स्विच कर सकते हो, किन किन केसेस पे स्विच कर सकते हो, किन केसेस में आप स्विच नहीं कर सकते हो, एवरीथिंग इज़ मेंशन. आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसी होनी चाहिए, कहाँ अपलोड करनी है, एवरीथिंग इज़ मेंशन देयर. यू शुड डेफिनेटली रीड दैट. वहाँ पे फॉर्मेट से लेके हर चीज़ है आपके पास. सो प्लीज़ डू नॉट मिस दैट, एंड I will link it in the description. आप यहीं से पढ़ लेना. You don't have to even go to ICSI site. And do not forget to go to the previous video and check MCA BSc को मैंने कैसे explore किया है. That will help you a lot. So this was it for today's video. I know video थोड़ी सी लंबी हो गई, but if you have stayed till here, definitely आपको help मिलने वाली है. And please do not forget to share it with your friends, to share it with people who might need this video. And आप भी इन चीज़ों का ध्यान रखना. Please do not forget to like, comment, share and subscribe to my channel for such videos. Abhi, by the way, I'm going to go for my CLDP and you're going to get so good content. Like, I'm going to do so many things. So please stay tuned. You will love my channel. Thank you for being a part of it. We are a family of 3,000 and I'm grateful for each and every one of you. Thank you. Bye-bye.